Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to Thoughtful Thursday. ये just मुझे एक आइडिया आया because I'm very happy today. आज मैं बहुत खुश हूँ. because I saw something on Instagram which was very unusual. जो लोग मतलब it was very unusual. I don't know लोगों की लाइफ में ये होता होगा तो that's very good, but it's very unusual. So what I saw, Shrimya Reddy, she's a Instagram beauty blogger. She's very good. और उन्होंने ना एक वीडियो डाली थी लाइफ इन अ डे. सो उनकी पूरी दिन की लाइफ थी where she was traveling. So उन्होंने ना एक लास्ट में था then where she made a few friends. One second. So where she made a few friends who were kids, and I was like, oh my god, ये बहुत ही unusual है. Where I saw someone on internet, especially on plane, making happy with kids. Mostly a back story I'll tell you. जब Instagram was picking up, बहुत सारे लोग public profiles नहीं होती थी. Instagram was new, not very new, but yeah, it was new. और लोग अपनी चीजें डालने से पहले Instagram में जब लाइफ इज नॉट वेरी पब्लिक, बहुत प्राइवेट होते थे लोग इंटरनेट में चीजें डालने से डरते थे. सो उस टाइम पे और रिसेंटली भी, not very recently, few months back or year back, I saw video. I will not lie, this is not a lie. I saw some of the biggest video where they were making faces on airport where kids were crying when and they're making weird faces like, oh my god, how can someone होता नहीं है आप फेस बना के oh my god this sucks, अब मैं कैसे फ्लाई करूंगी ये वो, मतलब they were making faces. So yeah, I felt bad. ये भी बहुत पुरानी बात है when even I was not even married, और ये मतलब उस टाइम की बात है. And I felt bad for the kid or child or someone, baby, or along with the parents. So thing is this is actually not any scripted video. मैं actually बस अपने thoughts in front of camera दे रही हूँ. तो बहुत सारी ऐसे मतलब I saw these kind of video were coming continuously when people were traveling on flight, and if their kid is crying they were making weird faces. And even I saw a few of the stories like they were like कि oh god please कोई बच्चा ना हो हमारी फ्लाइट में. So I felt bad because people I don't know, because I felt this is wrong क्योंकि जिस तरीके से आपको ट्रैवल करने का हक है, अदर पेरेंट्स विद अलॉन्ग विद देयर किड्स उन्हें भी हक है ट्रैवल करने का. आई नो traveling with kids is different, it's difficult, it's very difficult. I know, because I'm going to share my experience, my personal experience, and some tips along with that कि मैंने कैसे सीखा how to travel with your kid. So this happened और ये recently भी हुआ है. And what made me happy with Shrimya Reddy, because if she felt happy, she shared it. Because back then मैंने देखा था कि bloggers were like they making weird faces and they just like ये बहुत ही cool type nature मतलब बन गया था. Oh wow, लोग सोचते थे oh my god that I don't know, मतलब एक cool type, ये एक trend type हो गया था. अब तो ये थोड़ा कम हो गया है, बट येस इट हैपेंड. मैंने देखा है ये. टेल यू माई स्टोरी, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड. मेरी स्टोरी क्या है. हम लाइक आई एन अडल्ट, सो आई विल टेल यू. all the people who are working in IT, not everyone is living with their parents or family. जो भी जैसे like me and my husband, we were born in a small city, not a very metropolitan city, we were born in a small city. और हमारे लिए, हमें जॉब के लिए, अपना करियर बनाने के लिए we had to
लीव आवर पेरेंट्स हाउस एंड हमें बाहर आना पड़ा. इट हैपेंड और हम रहे. सो दिस इज हैपनिंग विथ मोस्ट ऑफ द पीपल. मतलब बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स के साथ सेम सिटी में ना रह के दे आर लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी, और ये होता है बहुत सारे लोगों के साथ. नाउ द थिंग वॉज, जब शनाया हुई थी, सो my mother came in to help us out because it was like because मेरी सारी pregnancy, I was working back then, और मेरी सारी pregnancy का जो schedule था everything was, और शनाया यहीं पैदा हुई. we thought कि this is the better option, best option कि हम क्योंकि मेरी सारी प्रेगनेंसी यही हुई, सारा प्रेगनेंसी मैंने यही डिलीवरी कराना. तो माई मदर के, और उसके बाद व्हेन शनाया वाज 2 months ओल्ड, हम उसे वापस ले जाना चाहते थे. नॉट लाइक वापस, मैं अपनी मम्मी के घर उसे ले जाना चाहती थी बिकॉज माई फादर वॉज स्टेइंग अलोन लाइक इन देयर. तो था कि वहीं पे हम शनाया का केयर ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, और तो हम उसे ले जाना चाहते थे. सो दिस हैपेंड, और जब ये हुआ तो वी वर लाइक ठीक है चलो चलते हैं. तो शनाया वाज 2 months ओल्ड जब हम उसको फ्लाइट में ले जा रहे थे. एंड वी टुक ऑल द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द पीडियाट्रिशियन कि कैसे ले जाना है बच्चे को, क्या केयर करनी है, क्या चीजें प्रिकॉशंस लेनी है, एवरीथिंग. सो जैसे ना डेट पास आती जा रही थी, आई वॉज गेटिंग एंशियस, आई लिटरली गेटिंग एंशियस. मुझे ना डर सा लगने लगा था, और मुझे डर इस बात का नहीं था कि मुझे सच में डर इस बात का नहीं था कि शनाया को कुछ हो जाएगा, या फिर बिकॉज आई नो कि आई कैन टेक केयर ऑफ हर. मेरे को डर इस बात का था कि इफ शी हैड स्टार्टेड क्राइंग फॉर एनी रीजन, मतलब कोई भी रीजन से, बच्चे तो बच्चे ही हैं, दे डोंट नो हाउ टू speak, or they don't know how to express their pain. So even though if she wants something to eat, like drink milk or something, she'll start crying. Or मतलब आप what will people think. मतलब मेरी एंजाइटी ये थी कि लोग क्या सोचेंगे, क्या लोग भी मेरे लिए ऐसे वियर्ड फेसेस बनाएंगे, लाइक दे विल बी लाइक ओ माई गॉड, लोग अपने बच्चों को क्यों लेके आते हैं, ये वो. सो मेरे अंदर ये डर था. इवन I was not able to sleep for 2 days. Literally I was not able to sleep for 2 days कि मैं मतलब कैसे लेके जाऊंगी, कैसे होगा. Luckily every time we took शनाया ऑन फ्लाइट, हर बार ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कभी प्रॉब्लम नहीं हुई. सो और मैंने कुछ टिप्स भी सीखे हैं चीजों को लेकर कि कैसे बच्चों को हैंडल किया जाता है ऑन फ्लाइट, ऑन एयरपोर्ट. तो ऐसा हुआ, मतलब कैसे होगा ये, लाइक हाउ विल इट इज गोइंग टू वर्कआउट, कि मतलब कैसे मैं मतलब उसको लेके ट्रैवल करूंगी. एवरी टाइम आई हैड टू ट्रैवल, मेरे अंदर वो एंजाइटी ना भट के आती है कि कैसे होगा. तो इट हैपन, और दिस इज बिकॉज मे बी कि मैंने लोगों को देखा है मेकिंग weird faces even in front, even not in camera. वो स्टोरीज वाली बात तो ठीक है, लोग कभी कभी आपके मुंह पे फेस बना के चले जाते हैं कि एंड इट लाइक कि यार ये बच्चों को लेके क्यों आते हैं लोग, समथिंग लाइक दिस. एंड आई फेल्ट बैड. तो आई टेल यू कि मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स अपने मतलब बच्चों का भी हक है अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने का, अपने रिलेटिव से मिलने का. सो बहुत जरूरी है कि दे विल एक्सपीरियंस देयर एल्डर्स के चीजें. तो ये बहुत जरूरी है. और आई फील कि और इवन दो बच्चों को नाउ वी आर इन दैट एज की दे आर इन दैट एज कि उन्हें हर चीज एक्सपीरियंस करनी चाहिए. सो दिस इज द थिंग. और सेकेंड थिंग मैं ये बोलना चाहूंगी कि हु आर मेकिंग फेसेस और मेकिंग स्टोरीज, प्लीज, क्योंकि
डोंट डू दिस बिकॉज इट बच्चे को तो आई एम श्योर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दे आर नॉट मेच्योर इनफ, बट पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही स्ट्रेस भरा हो जाता है. एवरी टाइम दे विल ट्राइंग टू ट्रैवल, उनको वही वही चीजें याद आएंगी जो मेरे साथ हमेशा होता है. एंड द थिंग इज I'll tell you the solution for this. If you felt like कि यार बच्चे आ गए फ्लाइट में, how will we travel or something, either you try to help the parents. मतलब प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको लगता है कि आप पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो, you are good with some people, you are you can do help that kid, तो आप हेल्प करो जाके. ask them कि क्या हम बच्चे को, बिकॉज शनाया से मैंने ये सीखा है कि इफ दे आर एंग्री और किसी भी चीज से चिड़चिड़े हो जाते हैं वो, तो दे जस्ट नीड अ स्मॉल डिस्ट्रैक्शन. उन्हें सिर्फ एक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन चाहिए था एंड दे विल बी हैप्पी विद इट. बिकॉज अगर उन्हें भूख नहीं लगी है, अगर उन्हें कोई किसी चीज से पेन नहीं है, सो दे विल बी लाइक ठीक है, हमें दे जस्ट नीड अ स्मॉल डिस्ट्रैक्शन. और अगर आप वो डिस्ट्रैक्शन कर सकते हैं सो हेल्प देम. इफ यू कैन नॉट डू दिस, यू आर इंट्रोवर्ट, आपको लगता है कि मैं सामने वाले से जाके बात नहीं कर सकता, इट इज डिफिकल्ट लाइक पर्सन लाइक मी, तो यार वी आर लिविंग इन वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजीज. शायद हम अपना वॉलेट भूल जाएं, बट हम अपना हेडफोन लेना कभी नहीं भूलते, कभी भी नहीं. मतलब हम अपना हेडफोन के बिना या फिर एयरपॉड्स सो मेनी टेक्नोलॉजीज और एयरबड्स जो भी आप बोलो, और आजकल तो वॉइस कैंसिलेशन टाइप एयरबड्स आ गया है, सबके पास होते हैं, हम उसके बिना नहीं भूले. कीप इट इन योर ईयर्स एंड आप अपनी फ्लाइट एंजॉय करो. व्हाई यू आर रूइनिंग योर मूड ऑफ वेर एवर यू आर गोइंग, और आप सामने वाले का भी मूड खराब कर रहे हो इफ यू आर मेकिंग फेस इन फ्रंट ऑफ देम. यार अगर डोमेस्टिक है तो 2-3 घंटे की फ्लाइट होगी, और अगर इंटरनेशनल है तो आई एम नॉट श्योर. बिकॉज अगर डोमेस्टिक है और यू आर ट्रैवलिंग विथ फील लाइक कि वो बच्चा मुझे परेशान कर रहा है, 3 घंटे की बात है, जस्ट गिव योर ईयरबड्स. और बच्चा, मुझे नहीं लगता बच्चा, कोई भी बच्चा, इवन दैट किड इज फ्यू मंथ्स ओल्ड ना, बच्चा अगर रोएगा भी ना तो वो रोते रोते थक के सो जाएगा. सो दिस हैपन्स, और ये सबके साथ होता है. सो I'll give you the solution. अगर आपके साथ you feel like oh my god मुझे किड्स के साथ ट्रैवल, keep it your earphones with you. आप उसके साथ जाओ, आप अपनी फ्लाइट एंजॉय करो अपने तरीके से. Why do you wanna divert your mind to like kids, और वो making parents making them in complex feel कराना, this is I felt bad. Second thing is about for the parents, for the tip. मैं like इतने सालों में she is now 3.5 years old, और इतने सालों में मैंने काफ़ी बार ट्रैवल किया है शनाया के साथ, स्पेशली ऑन फ्लाइट्स, और मैंने ना मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं शनाया से कि हाँ, मतलब बहुत सारे टिप्स सीखे हैं विच इज़ लाइक कि कैसे ट्रैवल किया जाता है बच्चों के साथ. कुछ नहीं है. टिप नंबर 1, आप अपनी फ्लाइट उस टाइम की लो जब आपका बच्चे का सोने का टाइम है. हर बच्चे का अपना एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, बड़े से होने से छोटे से बड़े तक में, और अगर वो शेड्यूल में आप अब कोशिश करो कि आप उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी फ्लाइट की टिकट लो. इफ अगर आपके बच्चे का आप नहीं ले सकते, अगर आप मतलब अपने बच्चे की फ्लाइट की टिकट उन शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं ले सकते, आपके पास नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ होती है, तो ट्राई टू बहुत छोटे बेबीज के साथ तो बहुत मुश्किल है, बट टोडलर्स के साथ यू कैन मेक इट लाइक कि आप उनका शेड्यूल थोड़ा सा चेंज कर दो. मेक इट लाइक अ शेड्यूल लाइक कि जब तक हम फ्लाइट में बैठे आपका बच्चा अपने आप ही सो जाए, थक के सो जाए, या फिर मेक देम प्ले लाइक कि या वो थक के सो जाए. सेकेंड थर्ड टिप कि मैं क्या करती हूँ कि वी ट्राई टू रीच टू द एयरपोर्ट थोड़े पहले ही, ताकि वो जो घर से लेके एयरपोर्ट का जो रास्ता है वो भी लगभग 45 मिनट्स 1 आवर का तो हो ही जाता है. और अगर मतलब उस 1 आवर में फिर वो मतलब वो ट्रेन का मतलब सॉरी कार का ट्रैवल, देन सडनली आप एयरपोर्ट में मतलब फिर आप दौड़े दौड़े जाओ, आप एयरपोर्ट में सारी चेकिंग करो, और
उसके बाद यार कितना कंस्ट्रक्ट, उसके बाद ना मतलब आप क्या करो मम्मा, तो आप ये कर सकते हो कि मतलब मैं क्या करती हूँ कि देन शी विल बी काम डाउन। वो थोड़ा एयरपोर्ट के मतलब हम 1 घंटे एक्स्ट्रा लेके चलते हैं मतलब फॉर एयरपोर्ट के लाउंज में, या फिर एयरपोर्ट पे ही वो थोड़ा खेल ले ताकि शी विल बी स्टेबल। और थोड़ा खेलने के बाद वो थक के फ्लाइट में खुद ही सो जाएगी। हाँ बेटू, हाँ थैंक यू। Okay, now the next I'm sorry, okay, now take your kids। अगर आपके बच्चे टोडलर हो चुके हैं जब शनाया was approximately मतलब 2 years old शायद हाँ 2 years की थी जब हमें ट्रैवल करना था, तो उसे ना लेस बहुत पसंद थे, तो हम साथ में ना लेस के पैकेट्स रख लिया था मैंने 2-3 अलग अलग फ्लेवर के, सो दैट इफ शी नीड समथिंग की थोड़ी स्नैकिंग करनी है तो वो खा सके। एंड और मेक ऑल दीज थिंग्स अगर आपकी बेबी का बॉटल है और आप बॉटल कर चीजें अगर आप मतलब आई एम सॉरी बॉटल है, खाना है, जो भी आपकी बेबी की नीड है, जो उसके रोने पे यू नीड टू गिव इट टू बेबी, तो आप उसको हैंडी रखो। ये ऐसा मत करो कि आप उसे लगेज में तो ऑब्वियसली मत डालो, कि आप इस तरीके से रखो कि आपको टाइम ना लगे उसको निकालने में, आप इजिली जल्दी से निकाल सको उस चीज को और अपने बेबी को दे सको। आई मेक श्योर मैं मतलब शनाया का हैंडबैग जब भी बनाती हूँ आई मेक श्योर कि मुझे हर चीज मतलब किस चीज की इंस्टेंट जरूरत हो सकती है। जब शनाया बेबी थी तो उसे अगर दूध पिलाना है तो मैं दूध का बॉटल और जो भी नेसेसरी चीजें होती थी मैं ऊपर ही रखती थी, मैं मतलब उसे नीचे नहीं डालती थी कि मुझे सारा सामान निकाल के और फिर इसमें टाइम लगता है और बेबी और इरिटेट होने लगता है। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आजकल के बेबीज आर स्पेशली आफ्टर कोविड बेबीज आर यूट्यूब बहुत देखते हैं, दे लव वीडियोज एंड ऑल, तो ये एक कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट हो जाता है एयरपोर्ट्स में और या फिर आपके ट्रैवलिंग में। सो फ्लाइट में तो ऑब्वियसली आपके चलेंगे नहीं इंटरनेट, तो व्हाट यू हैव टू डू you just need to download your baby's favorite song। YouTube में ये फैसिलिटी होती है, आप उसे डाउनलोड करके रख लो और वो बिना इंटरनेट के चल जाएंगे। मैं अप्रोक्सीमेटली कम से कम 50 वीडियोस डाउनलोड करके ही रखती हूँ शनाया के लिए, बिकॉज शी इज वेरी मूडी, उसे क्या कब देखना है यू रियली डोंट नो। तो मैं ना या तो मैं मतलब हमेशा उसके लिए मतलब 50 गाने हमेशा डाउनलोड करके रखती हूँ, सो दैट शी विल चेंज एंड वॉच, और जो उसको देखना है वो अपना देखे। और आई मेक श्योर वी ट्राई टू कीप हर काम डाउन, उसे हमें खुश रखने की कोशिश करते हैं। अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया है, इज लाइक अ टोडलर, और ये मतलब आपकी डांट समझने लगा है, ट्राई नॉट टू आप डांटने की कोशिश मत करना, बिकॉज मैंने शनाया के साथ तो ऑब्जर्व किया है अगर हम उसे डांटने की कोशिश करते हैं ना तो शील लाइक क्राई और ज्यादा रोने लगती है। तो यू एज अ पेरेंट यू नीड टू बी वेरी काम, आपको खुद को कंट्रोल करके रखना है और बच्चे को करना है। और द लास्ट टिप, ये एक्चुअली शनाया के साथ एप्लीकेबल नहीं हो पाता इसलिए मैं भूल गई थी। जब हम फ्लाइट से टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं, हमारी ईयर्स में पेन होता है, एवरीबडी हैज फेस इट। तो मैं पर्सनली मैं अपने कान में हेडफोन्स डाल लेती हूँ सो दैट मुझे पेन ना हो। और सेकेंड जो सोल्यूशन होता है कि आप किसी चीज को सक करते रहो तो इजी होता है, वो पेन नहीं होगा। तो
एयर प्रेशर की वजह से ये होता है. सो व्हाट हैव वी हैड लर्नड, यू नो, अगर आपका बच्चा बेबी है तो ट्राई टू फीड दैट बेबी एट द, यू नो, टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम आप अपने बच्चों को फीड करने की कोशिश करो. वट एवर का, यू नो, फीडिंग का जो उसका प्रोसेस है वो करने की कोशिश करो. सेकेंड थिंग, अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, इज अ टोडलर, तो ऑब्वियसली आप फीड कर सकते हो इफ यू वांट. थोड़ा बड़ा, जैसे नाउ यू नो किड्स आर 3 years ओल्ड और वो फीड नहीं करते हैं, या फिर 4 years वो फीड नहीं करते हैं. सो या तो यू नो गिव देम द लॉलीपॉप और उससे बोलो कि वो उसे यू नो खाए या सक करे. सो दैट ये एक बहुत ही यू नो वेरी कॉमन और बहुत इजी सोल्यूशन है. आप इससे अपने बच्चे का ईयर पेन रोक सकते हो. गिव देम देयर यू नो फेवरेट लॉलीपॉप. माई डॉटर इज नॉट अ चॉकलेट और स्वीट पर्सन, तो वो उसके साथ काम नहीं आता है. सो वी ट्राई टू कवर हर यू नो ईयर्स while you know take off and landing. या फिर मैं उससे यू नो स्नैक्स दे देती हूँ, उसकी चिप्स दे देती हूँ, सो दैट कि वो उसे चबा के स्वेल करे तो वो ये चीजें ना हो. सो या दिस इज ऑल द टिप्स एंड आई डोंट नो, ये मतलब आई डोंट नो इफ आई अपलोड दिस वीडियो और नॉट, बिकॉज ये बहुत ही दिस इज जस्ट माई फीलिंग्स. कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं बस ये वीडियो बैठ के बना रही हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर दिस. मैं बहुत लंबे टाइम से ये शेयर करना चाहती थी, बट मैं यू नो आई नेवर वॉन्ट लाइक डू लाइक दिस बिकॉज आई वॉज नॉट अ पर्सन हु जस्ट स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा. बट आई थॉट कि मुझे ये करना चाहिए बिकॉज आई फेल्ट हैप्पी टुडे. और या दिस इज इट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.